CGPA does matter a lot, so focus on this college curriculum as well साथ साथ। यार बहुत सारे मेरे दोस्त थे, इनका एक के बाद एक रिजेक्शन आता जा रहा था, बट अभी तो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। So, hello everyone, I am Atul Jha, an IEEE volunteer and host for this podcast by IEEE CUSB and IEEE CitySoc CUSB. So today we have Mr. Mohammad Fraz with us, who is software engineer at Google. He is an educator as well as a YouTuber with 98k plus subscriber. I hope am I right, or it's the new number now? Yeah, it's a new number recently, so it is 127 something. Oh, sorry for that. But sir, like this podcast will gonna be a placement oriented podcast, so that a student who is like preparing for his placement, he's in early phase, so he will be able to get some knowledge about it. Okay. Yes. So sir, I would like to ask one thing, like in the very first day of your college, what was your vision? Like in what direction your mind was going? Like what you want to do and all? Yeah. So my experience on the day one was like few seniors came. As soon as the first lecture was over, few seniors came and they said ki CGPA doesn't matter. Okay. And the moment I listened to that, मेरे को लगा कि यार these are the students from the second years and they themselves haven't went through the interview process yet. Yeah. So my focus was to attend class regularly and to be, because I was going in DTU, right? Yeah. And बहुत कुछ सुना था DTU के बारे में. So for me it was like कि they are going to educate me and they are going to like prepare me for placements and everything. So I was focusing on class a lot, and the first semester I did that very sincerely. And I got the least CGPA out of all the semesters which I have. Okay. In the first semester. I don't know why it happened, but yeah. I focused a lot on academics. I did not focus a lot towards solving problems. I did not know. Nobody guided me. Yeah. The all the guidance which I got was कि यार CGPA doesn't matter वाली guidance. So that happened in the first semester. But after that. Okay. So like honestly speaking, जब मैं मेरे first year में आया था, I was like visionless. लेकिन मुझे इतना था, मुझे stand out करना है crowd से in any way. मुझे नहीं पता कैसे. तो लाइक आपका कुछ वैसा था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है या मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, लाइक कुछ वैसा क्लू था आपके दिमाग में? सो रिसर्च का तो बिल्कुल नहीं था मेरे दिमाग में, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज इनटू मच इनटू स्टडीज, राइट? ओके. तो मेरा ये था कि यार अच्छी जॉब लेनी है बढ़िया जगह पे और फिर मतलब बढ़िया लाइफ जीनी है, चिल करना है बाद में. ओके. सो दैट वाज देन माय माइंड, एंड आई न्यू कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जो कि आपको सैलरीज भी अच्छी देंगी, एंड लाइक द वर्क कल्चर दे विल बी गुड. सो आई वाज फोकसिंग ऑन दोज कंपनीज फ्रॉम द स्टार्ट, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरी अर्ली इन द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद आई गॉट सीरियस समर हॉलीडेज में. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. ओके. तो भैया लाइक लेट्स अज्यूम आपकी जगह मैं था आपके फर्स्ट डे पे, आप वो सीनियर है, तो आप मुझे क्या गाइडेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ दैट CGPA डजंट मैटर? सो यार मैं आपको ना एग्जांपल बताऊंगा, मतलब ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एलिमिनेट करके. सो मेरी सिस्टर भी नेक्स्ट ईयर कॉलेज में आई. ओके. एंड मैं अपना एक सेमेस्टर तो वेस्ट कर चुका था, एंड आई नो कि यार एक सेमेस्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. जी. तो आई वुड नेवर से कि यार मेरी तरह करो. तो उसको मैंने प्रॉपर्ली गाइड किया. उसको मैंने बोला कि यार फर्स्ट सेमेस्टर स्पेंड ऑन लर्निंग अ लैंग्वेज. ओके. एक लैंग्वेज सीखने में अपना टाइम स्पेंड करो, देखो यार कि मैं मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है. उसकी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ओके. तो इलेक्ट्रिकल करना है या फिर ये कोडिंग में आना है, राइट? These two are different tracks. Yes. तो मैंने इसको बोला कि सेमेस्टर में पूरा अच्छे से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह मैं इजी वाले करवा दूंगा, which are not for interview prep but to get hands on coding. Okay. तो that's what I suggest जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं. Spend your time on learning a programming language, and if you know that you want to go in this field, at least try it out. Like भैया आपने बोला आपकी बहन बेसिकली इलेक्ट्रिकल, तो एक कोर इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको चाहिए कि उनको एक अच्छा प्लेसमेंट हो आफ्टर देयर कॉलेज लाइफ, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको इसमें एक्सपीरियंस भी एक तरीके से? करेक्ट. तो we should think about both the scenarios. One is on campus placement and other one is the off campus placements. CGPA does matter a lot, so focus on this college curriculum as well साथ साथ. There are few important subjects in college as well, जैसे आपका C fundamentals हो गया. जी भैया.
आई डोंट नो कि विच टेक्स्ट बुक यू आर फॉलोइंग, विच रिसोर्स यू आर फॉलोइंग एंड क्या कर रहे हो, आप फोकस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो क्लास में, बट एट द एंड इट्स योर ड्यूटी टू लर्न दोज थिंग्स प्रॉपर्ली Yes. उसी टाइम में, बिकॉज बाद में जाके आप टाइम निकालोगे तो इससे बढ़िया अभी कर लो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. ये लर्न द फंडामेंटल्स, स्टार्ट लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एंड देन. इसको भी इंटरेस्ट है. अच्छा भैया, लाइक मैं अभी ना 3rd ईयर खत्म हुआ, 4th ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ और मेरे मैं कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, और लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है मैं बैठ ही नहीं पाया. लाइक कुछ क्राइटेरियाज आ जाते हैं. इवन दे आर सम मोमेंट्स कि मैं बैठ गया, मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ. लाइक वो टेस्ट मैं सोच के गया था C++ का हो गया, आगे React.js, अब मुझे नहीं हुआ. उसके बाद वो मोमेंट लगता है कि यार मैं सही रास्ते पे तो हूँ. तो लाइक वैसे मोमेंट्स के लिए आपका क्या कहना है? लाइक आपने कभी वैसा फेस किया है? यस. सो मेरी ब्रांच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस नहीं थी. ओके. तो कंपनीज आती हैं डिमांड लेकर के कि हमें COE वाले बच्चे चाहिए. ओके. बाकी ब्रांचेस को कह देते हैं कि आप मत बैठो. ओके. तो ये भी मैंने फेस किया. देयर आर फ्यू कंपनीज जो नहीं ओपन हुई सॉफ्टवेयर के लिए. ओके. पहला एलिमिनेशन क्राइटेरिया. सेकंड वाज CGPA. अब CGPA मैंने डिसेंट मेंटेन कर ली थी. ओके. जब प्लेसमेंट हो रही थी इट वाज समवेयर अराउंड 9.34. ओके. उसमें सब में बैठ गया मैं. बट स्टूडेंट्स इसमें भी एलिमिनेट होते हैं बिकॉज ऑफ द CGPA. यस. देन थर्ड इज द ऑनलाइन टेस्ट. उसमें मैक्सिमम लोग फिर एलिमिनेट हो जाते हैं. तो उसके लिए बस यही है कि यार यू शुड बी गुड विथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एटलीस्ट, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग तो इतना इशू नहीं है, बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, अमेजोन कंपैरेटिव पूछती भी नहीं है. भैया ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को इतना पता है DSA आना चाहिए. तो आपके हिसाब से अगर मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी बट कंपनीज फोड़ने के लिए DSA पढ़ना है, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट है और इनको तो कवर अप करना ही चाहिए इन DSA? तो टॉपिक्स तो वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट देन देयर आर फ्यू टॉपिक्स which are asked in comparative programming और बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में नहीं पूछे जाते हैं, because the interviewer they don't expect you to learn these advanced algorithms या advanced data structures. ओके. अब जैसे सेगमेंट ट्री हो गया एक एग्जांपल, ठीक है, ये है तो वैसे इजी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, यू कैन इफ यू वांट यू कैन लर्न इट, 2-3 घंटे लगाओगे समझ में आ जाएगा. बट देन उसके जो अच्छे वाले एडवांस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी कि आप इसको पढ़ के आएंगे. दे आर मोर इनटू कि एरेज अगर आपको पता है तो आप एक ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दो यूजिंग दैट स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट यू नो एरे, बिकॉज व्हाट दे वांट टू चेक इज योर कंप्यूटर फंडामेंटल्स एज वेल एज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक एल्गोरिथम से ही वो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं. ओके. सो यस, एंड या एक और चीज़ प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ. सो आई यूज्ड टू डू LeetCode and it's a very good platform. Yes, especially the discussion section. कहीं भी आप stuck होते हो ना, just go to the discussion section, find the solution in your own language, C++ का, Java, Python, JavaScript, किसी का भी अपने language का solution देख लो या फिर hints देख लो. So both the options are there. एक पर लाइक मैं भी LeetCode पे ही करता हूँ. आपकी जितने ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं है, बट एक मेरे को बीच में आया था कि जो भी मैं आंसर कर रहा हूँ सॉल्व, उसको मैं डिस्कशन में जाके डालता था. एंड द थिंग इज मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करता था. तो एक डिस्कशन में क्या हुआ, मेरे को 1K व्यूज आ गए. आई वाज लाइक अब तो कोडर हूँ मैं. तो लाइक आपका वैसा कोई एक्सपीरियंस है जो कोडिंग के साथ जिसने आपको एकदम फील करा है कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा है जिंदगी में? So I started this channel, and this channel got started with an incident. Okay. Like I was teaching my sister, and I had to move out to Bangalore. Okay. Unfortunately वो नहीं हो पाया because of COVID at that time. 2020 की बात है. Okay. So I created this channel, and फिर मैं क्या करता था, I used to wake up early जब ये हमारा LeetCode का contest होता है. हाँ. Solve those questions, and then at that time itself record the video and then upload the video. मतलब वो 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है, उसमें पहले के 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व किए, बाद के आधे घंटे में रिकॉर्ड किया सॉल्यूशन एंड देन अपलोड किया और फिर उसको डिस्कशन में डाल दिया. तो उससे क्या वो लोग आने लगे, लोगों को बढ़िया लगा कि यार कोई सॉल्यूशन वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा है, और वो भी एकदम कॉन्टेस्ट खत्म होते ही. क्योंकि हमारा क्या रहता है ना, हमें सॉल्यूशंस एकदम कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद ही चाहिए होते हैं. बाद में हम ये वेट नहीं करते कि हम 2 दिन बाद करेंगे, फिर हम करते ही नहीं है कभी, राइट? एग्जैक्टली. सो वैसे ही स्टार्ट हुआ, एंड देन आई थॉट कि ठीक है यार अब लोग पढ़ने लग गए हैं तो और पढ़ाते हैं और चीज़ें कवर करते हैं. हाँ ये तो भैया इवन पता है लाइक ये क्वेश्चंस वाला जो आपने बोला कॉम्पिटिशंस, मैं ऑनेस्टली इसमें एक्सपीरियंस ये रहा, 4 क्वेश्चंस होते 4 to 5 मेनली. मेरा हर समय ये होता है 2 तो मेरा अच्छे से रन करेगा, दैट इज फॉर श्योर. लाइक 3rd क्वेश्चन पे आऊँगा वो आधा होगा मोस्ट टाइम. लाइक वैसे मोमेंट्स पे लगता है ना कि यार लाइक मजा तो आ रहा है बट हो तो नहीं रहा.
मैं करूँ तो करूँ क्या, फिर कभी कभी मन होता है चलो कहीं से छाप देते हैं, छाप ये होता है भैया, लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, छाप देते हैं, कुछ तो होगा। तो लाइक उन सब में आपका क्या सजेशन है, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, भले ही वो काम नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी आते दिमाग में। ऑलराइट, तो अभी आप मेरे को एक बात बताओ कि जब आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेट्स से थर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, हाँ सो क्या करते हो फिर उसके बाद? भैया देखिए, मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच यही है, मैं क्वेश्चन को ना नोटबुक में एक डायग्राम बेस से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं लॉजिक वैसे ही लगाता हूँ, उसको बाद में कोड में लिखता हूँ। बट द थिंग इज, ऑप्टिमाइज कोड जब लिखने की बात आती है ना, तो वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैं अटकता हूँ, क्योंकि एक पता है मेरे को कभी कभी फील होता है मैं इन डेप्थ नहीं घुस पा रहा हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को तरीके पता है लेकिन उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ, और जैसा मैंने टीएलई ही मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है, चलो मान लो टीएलई आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, उसके बाद भैया लाइक पहले तो कॉन्टेस्ट खत्म, ब्रेक लिया, अब फिर मैं रात को बैठता हूँ बेसिकली रिसर्च करने के लिए उस क्वेश्चन पे कि ये था क्या एग्जैक्टली। तो आ जाते हैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस तो आ जाते हैं उस मोमेंट तक। तो वही है कि उनके अप्रोच को वही नोटबुक में अपना उतारा, और लाइक वो नोटबुक एक ऐसी चीज़ है जो मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते दो हफ्ते में चक्कर मारूँ उसका, लेकिन हाँ कभी कभी मिस भी हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम यू शुड डू अपसॉल्विंग। अपसॉल्विंग क्या होता है कि लुक एट सॉल्यूशंस, look at the discussion section, read the solution, try to solve it after reading the solution. वो भी नहीं होता है then you can go for the code as well, मतलब ऐसा कुछ restrict नहीं कर रहा है आपको, आप पढ़ ही रहे हो, है ना? तो okay. इवन भैया पता है मेरे साथ एक आपको लीड कोड का क्वेश्चन शायद याद होगा, बाय एंड सेल स्टॉक ऐसा करके क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली मिनिमम वैल्यू का स्टॉक एंड मैक्सिमम। तो ये मेरा इनिशियल क्वेश्चंस थे कुछ जिसने मुझे काफी ज्यादा डिप्रेस किया। तो आपके हिसाब से जो स्टूडेंट इनिशियली स्टार्ट किया है और उसको ये से क्वेश्चंस डिप्रेस कर रहे कि नहीं हो रहा सॉल्व, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? बाय एंड सेल स्टॉक के एक्चुअली काफी सारे पार्ट्स हैं, बाय एंड सेल 1 2 3 4 इस तरीके से हैं। यस, डायनामिक प्रोग्रामिंग से भी हो जाते हैं और उसकी एक दूसरी ग्रीडी अप्रोच भी है, उससे भी सॉल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। जी सो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, यहाँ पर कुछ मीडियन निकालना था यार, वो सॉर्टेड एरेज का 2 सॉर्टेड एरेज का मीडियन निकालो, वो मेरे को बहुत, उसके कॉर्नर केसेस संभालना भी मेरे को हेक्टिक लगता है जी। बट देन इफ यू थिंक पीसफुली तो मेरे को बाइनरी सर्च तो आता है, राइट? सो व्हाई एम आई नॉट एबल टू सॉल्व इट? बिकॉज मैं उसमें जल्दी कर रहा हूँ, मैं जल्दी इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यार जैसे मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, ट्री के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, बट हर कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसमें मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। सो एट दैट टाइम आई शुड टेक अ ब्रेक, आई शुड थिंक प्रॉपर्ली, राइट द प्रॉपर एल्गोरिथम जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसको सोच के देखो, एक बार टेस्ट केस पे लेके देखो, 2-3 केस बना के देख लिए, देन कोड इट। अच्छा, तो उस तरीके से इजी हो जाएगा। आपके हिसाब से एवरेज टाइम एक क्वेश्चन पे एक बंदे को कितना डेडिकेट करना चाहिए? अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सामने वाले को, नहीं बन रहा, तो फिर कितना टाइम देना चाहिए? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि इफ यू आर एबल टू थिंक ऑफ एन एल्गोरिथम तो उसको अप्लाई करके देखो, कोड करके देखो, चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है? वहां से छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज देन इट विल बी टू अर्ली टू लीव फ्रॉम दैट पॉइंट। बट इफ यू आर कंप्लीटली स्टक एंड यू आर नॉट एबल टू थिंक यार करना क्या है इसके आगे, मतलब क्वेश्चन रीड करके सिर्फ क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है और उसके आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कौन सा एल्गोरिथम होगा, ग्राफ होगा, ट्री होगा, लिंक लिस्ट होगा, क्या होगा, यू आर कंप्लीटली ब्लैंक। गिव इट 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स, सोचो कि क्या है क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है, क्या मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन कभी करा है इससे पहले, एंड विच एल्गोरिथम पॉसिबली कैन आई यूज इन दिस। नहीं होता है, गो फॉर द हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। ओके, तो या आधे घंटे से ज्यादा एक्सटेंड करना, इट विल बी टू लेट। ठीक है, उतना ज्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है उस वाले क्वेश्चन पे। लाइक आपके हिसाब से एक जब टाइम पार हो जाए तो उसके बाद सॉल्यूशन देख के उसे प्रैक्टिस करना सही है? मतलब अगर आप ट्राई करते जा रहे हो अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस लगाते जा रहे हो और फेल हो रहे हो तो कोई इशू नहीं है, तब टाइम देते जाओ, है ना? एटलीस्ट यू आर एबल टू थिंक समथिंग। जी भैया। सो जब रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाए, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर द हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। ओके, तो लाइक कोडिंग के कुछ एरियाज ऐसे जो कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो अब हमने कवर किया। अब लेट्स कम टू द प्लेसमेंट पार्ट। तो लाइक आपने 3 कंपनीज अभी तक क्रैक की है, राइट? लाइक पहले आपने सैप लैब में थे, फिर क्योरफिट में आए, फिर आप गूगल में। तो लाइक ड्यूरिंग दिस आपका जो सैप लैब का इंटरव्यू था, क्या वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? लाइक yes, it was my first interview। Okay। और it was an offline interview। ओके, तो सामने से एकदम बैठ के इंटरव्यू दिया था और उस टाइम तो कोविड वगैरह था नहीं, so it was the first experience। अच्छा, तो लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या था? लाइक वो एक होता है ना दिल में दुख उस समय, तो लाइक वो आपका क्या था फर्स्ट टाइम? सो यार मेरा कॉलेज बहुत दूर था घर से, तो मेरे को जल्दी निकलना था सुबह, एंड उससे एक दिन पहले मैं ऊबर का टेस्ट दे के आया था, ऑनलाइन टेस्ट। ओके,
और उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था रात में. सो अब एकदम जैसे वहाँ से बाहर निकला 3 क्वेश्चन आए थे ऊपर के टेस्ट में एंड आई वाज एबल टू सॉल्व आई गेस 2 आउट ऑफ देम. एक मेरा नहीं हो पाया था. मेरे को पता था कि नहीं होना है. तो स्टूडेंट्स आर देयर जो कि बहुत अच्छे कोडर्स हैं, वो कर लेंगे 3 क्वेश्चन. मैं निकल के आया तो बड़ा सा मतलब मुंह लटका के आया था नीचे. देन देखा यार शीट में नाम आ रखा है कि और उसमें लिखा हुआ है कल है इंटरव्यू. मैंने कहा यार अभी तो रात में पहुंचेंगे घर पे, दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी हो रखी है यार, इसको भी कटाना है. मतलब सही सी शक्ल लेके जाओगे ना इंटरव्यू के सामने. तो मैं पहुंचा घर पे. फिर यार थोड़ा थका हुआ था. आई जस्ट पिक्ड अप माय रिज्यूमे और मुझे ये लगता था कि टाइम मिलेगा कब, मतलब जब मेरा एक बार राउंड क्लियर हो जाएगा ऑनलाइन तो उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा एंड देन आई विल प्रिपेयर फॉर माय रिज्यूमे, आई विल प्रिपेयर फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स. लेकिन कुछ नहीं मिला. मतलब कुछ 1-2 घंटे मिले जिससे मैंने अपना प्रोजेक्ट देखा और ये सोचा कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको ऐसे टैकल करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो उसको इस तरीके से टैकल करूंगा. मतलब जस्ट इमेजिनरी वही, और कुछ ज़्यादा नहीं देखा. देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. इतनी तगड़ी नींद आ रही थी बिकॉज रात भर तो नींद आई नहीं थी. सुबह सुबह मेट्रो में आके बहुत तेज नींद आ रही थी और एक्सटेंड होते ही जा रहा था टाइम. मतलब लोग जा रहे थे वहाँ पर. पहले उन्होंने फुल टाइम का स्टार्ट कर दिया. देन उसके बाद फिर मेरा इंटर्न का था, फिर इंटर्न का स्टार्ट किया तो बहुत देर हो गई वहाँ पर. देन आई थॉट कि नैप ले लेते हैं. लेकिन यार फिर जब नींद से उठो ना और फिर इंटरव्यू में जाओ तो फिर और गंदी परफॉर्मेंस आती है. तो ऐसा था, थोड़ा शेकी सा था. मेरे को लग नहीं रहा था कि होगा आज. देन फर्स्ट राउंड में जाके थोड़ा हल्का सा मैसअप किया. फर्स्ट राउंड में मैसअप किया हल्का सा एंड लेकिन फिर शॉर्ट लिस्टिंग हो गई फर्स्ट राउंड के बाद. और बंदे निकलते जाते हैं. मतलब 20 बंदे पहुंचे वहाँ पर. ठीक है, पहले राउंड के बाद 7 रह गए, फिर 6 रह गए, फिर 5 रह गए. इस तरीके से निकलते जा रहे थे एक-एक करके एंड होता गया क्लियर एक-एक राउंड. तो या इट वाज गुड बट वही नर्वसनेस तो काफ़ी थी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज गिविंग इंटरव्यूज. लाइक मेरी देखिए लाइक इंटर्नशिप फेज जब आता है तो बहुत बच्चों का ऐसा भी होता है कि आपके अगल बगल वाले बैठे जा रहे हैं कंपनी में और आपका कुछ रीजन से नहीं हो रहा है. लाइक इट कैन बी CGPA, इट कैन बी मल्टीपल थिंग्स. बट उस पर और एक फैक्टर आ जाता है ना कि कुछ लोग के CGPA नहीं होते बट उनके कुछ अलग स्किल्स होते हैं जो एक्चुअली में अच्छे होते हैं. बट स्टिल डिप्रेशन तो आ रहा है. तो लाइक उनके लिए आपका क्या सजेशन है जब ऐसा कोई ब्लैक फेज रहे लाइफ में और आपको नहीं समझ में आ रहा है, भले ही आप में स्किल्स है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करो, तो आपका क्या सजेशन है? उसको क्या ट्राई करना चाहिए उस ब्लैक फेज से निकलने के लिए? तो यार बहुत सारे मेरे दोस्त थे, इनका एक के बाद एक रिजेक्शन आता जा रहा था. बट अभी तो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है. वन ऑफ देम इज प्लेस्ड एट गूगल, द अदर वन इज प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट. तो ये मेरे 2 दोस्त थे जिन्होंने बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं एक के बाद एक, कैंपस प्लेसमेंट में खासकर. और एंड तक प्लेसमेंट मतलब लग नहीं पाई थी जहाँ तक मुझे ध्यान है. फाइनली दे क्रैक्ड ऑफ कैंपस. तो स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब पक्का लग जाएगी, दैट्स फॉर श्योर. नाउ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड रिग्रेटिंग जस्ट कीप ट्राइंग. ट्राई करते रहो क्योंकि एक बार तो मतलब डिप्रेस होकर रुक गए ना फिर तो आपने अपनी जर्नी वहीं खत्म कर ली खुद से ही. ये तो है. एंड जितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया वो भी वापस नहीं आने वाला है. ये तो सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग ओवर कि यार क्यों रिजेक्शन हो गया, लास्ट राउंड में रिजेक्शन हो गया, HR में रिजेक्शन हो गया या फिर ऑनलाइन में अगर हो गया, सो जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वन और थोड़ा फ्रेश माइंड से चिल आउट करके. ओके. मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है ना, मुझे तो मैंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैंग. लेकिन नहीं होता ऐसा, हर किसी के बस की बात नहीं होती, भीड़ भी वहाँ बहुत ज़्यादा है. तो वैसे स्टूडेंट्स अगर लाइक कुछ स्टार्टअप्स आप ऐसे बता सकते हैं जो टारगेट करना चाहिए, या नेम नहीं बता सकते तो लाइक हाउ लाइक कैसे स्टार्टअप्स को हमें टारगेट करना चाहिए? क्योंकि हम लिंक्डइन पे जब जाते हैं बहुत सारे कंपनीज के नेम आते हैं बट फिर लगता है ये कंपनी तो सुनी नहीं आज तक, अप्लाई करूँ नहीं करूँ, भले इट्स मैचिंग जॉब. तो आपके हिसाब से क्या है, हमें लाइक टारगेट करना चाहिए स्टार्टअप्स को वैसे टाइम पे जब आपका मैंग हो ही नहीं रहा है, आपके मतलब ड्रीम कंपनीज नहीं फुट रहा है बेसिकली, तो वैसे टाइम से ऑन करना चाहिए काम? सो यार इंटेंशन यही है कि कॉलेज से निकलते निकलते जॉब होना चाहिए. वो स्टार्टअप में हो, मैंने भी तो स्टार्टअप से ज्वाइन किया था. स्टार्टअप में हो, फैंग में हो, मैंग में हो या किसी में भी हो, एक जॉब होना चाहिए आपके पास. एंड मेरा अगर इस वाले स्टार्टअप में नहीं लगता, वैसे मेरे जो स्टार्टअप था क्योर, फिर उसमें काफ़ी अच्छा बेस सैलरी एंड सब कुछ था, पर उसमें भी नहीं लगता, किसी और में लगता, तब भी मैं सेटिस्फाई होता बिकॉज आई नो कि अब मैं इंडस्ट्री में आ गया हूँ एक बार, तो आई कैन मेक अ स्विच, दूसरी कंपनी में जा सकते हैं. सो इंटेंशन यही रहना चाहिए कि कहीं भी प्लेसमेंट ले और बैठना सारी कंपनीज में चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कंपनीज ये सोच के कि मेरे को सिर्फ अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल मिलेगी तभी मैं उसमें जाके जॉब करूँगा. अच्छा. लाइक मैंने खुद देखा है लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में ना काफ़ी सारे मास रिक्रूटर्स आते हैं और स्टूडेंट्स के पास ना काइंड ऑफ ऑप्शन नहीं रहता. उनके ऐसा रहता है कि वही कंपनीज हैं
तो क्या ले लेना चाहिए उस मूवमेंट पे? मतलब आपने जैसे अभी एक्सपीरियंस वाली बात बोली, तो क्या वहाँ भी वो चीज़ वर्कआउट करती है मास रिक्रूटमेंट कंपनीज में? तो यार दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। मान लो कि अगर आज एक कंपनी आती है, वो आपको 3.5 लाख का पैकेज दे रही है, आपको पता है कि आगे 50 कंपनी आने वाली हैं जो कि आपको 10 लाख से ऊपर का, 8 लाख से ऊपर का पैकेज दे देंगी। तो आर यू प्रिपेयर्ड इनफ? अगर नहीं प्रिपेयर्ड होगे तो आप बैठोगे इसके लिए, अगर प्रिपेयर्ड होगे ना तो इसको स्किप कर दोगे, बोलोगे ठीक है इससे 4 गुना जो ज़्यादा दे रही है हाँ, उसमें ट्राई करूँगा, और बहुत सारी आने वाली हैं ऐसी कंपनीज। राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि अगेन एज आई सेड कि यू कैन मेक अ स्विच। बस ये देख लेना आप लोग कि जिस भी कंपनी में आप लोग अप्लाई करो उसमें ऐसा वाला बॉन्ड ना हो कि आप जा ही नहीं सकते हो वहाँ से फॉर 2 years या फिर 1 year, क्योंकि 2 साल का टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप एक लो पैकेज से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पैकेज ज़्यादा मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, तो ठीक है, यू कैन एक्सेप्ट द बॉन्ड ऑफ 2 years। बट ऐसे कम में जा करके 2 साल कमिटमेंट देना फ़ायदा नहीं है कोई। राइट। और भैया क्या लाइक समझिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने एक टेस्ट इंजीनियर से चालू किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था काइंड ऑफ, ये मान ली, लेकिन आई एम ए गुड फुल स्टैक डेवलपर। तो क्या वो स्विच वाला जो टाइम होता है कि मुझे टेस्ट इंजीनियर से जाके फुल स्टैक डेवलप, तो वो ईजी होता है या लाइक इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट कि टेस्ट इंजीनियर छोड़ते हैं टेक्निकल सपोर्ट से फुल स्टैक डेवलपर मुझे बनना है, तो लाइक वो स्विच ईजी होता है या इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट? सो या आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने सपोर्ट रोल से बहुत अच्छी कंपनीज क्रैक करी हैं। एंड रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था, देयर वाज समवन फ्रॉम एप्पल। ओके। तो उन्होंने रिसेंटली एप्पल में स्विच किया। उससे पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था, इट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ओनली, बट सपोर्ट रोल था, सपोर्ट रोल से स्टार्ट किया था, देन डेवलपमेंट में आके देन फिर उसके बाद एप्पल में स्विच किया। तो हाँ, आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंच तो सकते हो, दैट्स फॉर श्योर। बट ये है कि यार वहाँ पर जाके भी आपको फिर ट्राई ही करना है। वहाँ पर यू कैन नॉट सेटल योरसेल्फ कि ठीक है अभी चल रहा है, काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है और उसको खर्च कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी द केस, यू शुड जस्ट कीप लर्निंग एंड देन हो जाता है लोगों का, इजीली हो जाता है। ओके। अच्छा, लाइक आपको अगर कोई पोजीशन, समझिए कोई बिगनर है, आपको उसे एम दिखाना है, लाइक ही इज क्लूलेस, उसको इतना पता है वो कर लेगा, आपको उसे अगर एम दिखाना है कि तू इस रास्ते चल जा, कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर फील्ड से स्पेसिफिकली, तो आप क्या एम दिखाएंगे? लाइक एक ड्रीम काइंड ऑफ। बनाई तो है वीडियोस यार वो तो है भैया, 2 वीडियोस बनाई हैं। लाइक स्पेसिफिकली आप लोग फ्राज भैया को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन हिज लाइक 2 चैनल, लीड कोडिंग बाय फ्राज एज वेल एज फ्राज जस्ट। तो लाइक सो भाई ये पढ़ाने के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत दिखाता भी रहता हूँ कि यार मज़े आते हैं, काम करने में भी मज़े आते हैं, एंड यू विल हैव टू अर्न दैट। यस। सो वही मोटिव है उन वीडियोस का, बाकी शो ऑफ करना मोटिव नहीं है उनका ये तो है भैया। लाइक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, एंड स्पेशली आप जो रिसेंटली पॉडकास्ट चालू किए हैं, तो लाइक मैंने एक ही देखा हुआ है ऑनेस्टली। तो इस जस्ट की एक चीज़ ये है, पॉडकास्ट कंटेंट, लाइक अभी भी हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से, तो आपका क्या सजेशन है पॉडकास्ट रिलेटेड? आपके हिसाब से पॉडकास्ट क्या फेस बन सकती है आगे जाके फॉर नॉलेज अर्निंग? सो पॉडकास्ट should not be gyan alone, it should be experience and it should be a story. So that's what I try to cover whenever I have someone for the podcast. I try to cover his story because stories से लोग ज़्यादा relate कर पाते हैं rather than just knowledge। यार वो तो कहीं भी मिल जाएगी, आप सर्च मारोगे कि what all things you need to be a data engineer, सब मिल जाएगा वो ही क्या क्या, लेकिन एक बंदे का एक्सपीरियंस सुनो, उसके अप्स एंड डाउन सुनो, तब जाके आपको मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। राइट। So yeah, that's what I'm trying to deliver, and सिर्फ podcast ही नहीं, मतलब I'm just keeping a mix of every content. Yes भैया, वो तो है, लाइक वो तो मैं देखते रहता हूँ ऑनेस्टली, वो मैं देखता हूँ, एंड स्पेसिफिकली आपका लीड कोडिंग बाय फ्राज चैनल, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि DSA में अभी पढ़ रहा हूँ। जैसे बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है अभी नहीं, लाइक भैया पता है मैं बहुत एडवांस में नहीं घुस पाया हूँ ऑनेस्ट बोलूँ तो। मैं ज़्यादातर ना वो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला जिस क्वेश्चन में आपको कहते हैं, लाइक जिस वीडियोज़ में मैं वो ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मैं एक वो बंदा हूँ जो थियोरी क्लियर कर लेता हूँ, बट क्वेश्चन मेरा सीधा फंडा है, मैं पेपर पे करूँगा, लीड कोड पे सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं एक ही अप्रोच पे नहीं रुकूंगा। एक अप्रोच आ गया, मुझे चाहिए सेकंड अप्रोच। तो वो जब टाइम आता है तो मैं सोचता हूँ चलो एक तो कर लिया ना, अब वीडियो पे जाते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। हाँ, दैट्स द करेक्ट अप्रोच एक्चुअली, कि यू शुड एक्चुअली लुक एट द कंटेंट जो कि अवेलेबल है, बिकॉज समटाइम्स यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद अ कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स से n स्क्वायर, लेकिन मान लो उसका बिग ऑफ n अवेलेबल हुआ है ना, यार आपने कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, विदाउट यूजिंग दैट डेटा स्ट्रक्चर दूसरा सॉल्यूशन अवेलेबल हो। इंटरव्यूज में क्या होता है, इंटरव्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो द बेस्ट सॉल्यूशन। फॉलो अप में यही पूछेंगे कि ठीक है एक्सेप्टेड आपने इससे कर लिया, देन कैन यू इम्प्रूव इट इन टर्म्स ऑफ स्पेस या टाइम। इसलिए
नॉट ओनली विद द वीडियोस व्हेन यू सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम्स आल्सो, देन डिस्कशन में जो होता है ना, जाकर के फिर भी देखो किसी ने बढ़िया कर रखा है इसे या नहीं. एक्चुअली पता है डिस्कशन में ये होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में लिख देते हैं, उनको देख के लगता है मैं सीख भी रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ कुछ. होता है यार, कई बार मेरे भी ऊपर से जाते हैं सॉल्यूशंस और लोग इतना अजीब करके लिखते हैं, बट देन उसका हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना. जैसे लिरिक्स के ब्रेक डाउन होते हैं वैसे हमें क्वेश्चन का ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि हाँ यार ये लाइन ये कर रही है, ये लाइन ये कर रही है. अपने आप को खुद को धीरे धीरे समझाओ, फिर समझ में आ जाता है सॉल्यूशन. टाइम स्पेंड करना पड़ता है उन पर. लाइक अगर हम बेसिकली बात कर लाइक एक कंक्लूजन पॉइंट पे लाए लीड कोड को, तो लीड कोड का वही है कि बस एक्सप्लोर करते जाओ, जितने वेज है उन सबको एक्सप्लोर करते जाओ. लेकिन आपके हिसाब से अगर हम एवरेज टाइम अगर मुझे डेडिकेट करना है, लाइक मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, मैं 6 बजे मैं कॉलेज से रिटर्न आता हूँ, अब मेरे पास टाइम ऑब्वियसली 12 बजे तक है क्योंकि अगले दिन फिर जाना है. तो एक एवरेज टाइम एक कोडिंग के लिए कितना देना चाहिए मुझे स्पेसिफिकली? आई थिंक इजीली आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो पूरे शेड्यूल में से. और कॉलेज के बीच में जो ब्रेक्स होते हैं, मतलब क्लासेस के बीच में, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि नया तो आप सीख नहीं पाओगे, बहुत सारा क्राउड होता है आसपास. वही, बट यू कैन हैव दोज नोट्स विथ यू एंड उनको रिवाइज करके देख सकते हो कि हाँ भाई ये किया था, ये किया था, ये किया था, रिवाइज करके देख सकते हो. अच्छा, अब लीड कोडिंग लाइक कोडिंग के बाहर आके अगर हम डेवलपमेंट पे आए, डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स तो चाहिए. तो प्रोजेक्ट्स के लिए आपका लाइक क्या सजेशन होगा, कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी में देखा था, मैंने HTML CSS देखा, मुझे इजी लगा, तो आई वाज लाइक इसी को कंटिन्यू करते. मैंने डायरेक्ट यही किया था. मेरे इनिशियल अप्रोच ये थे कि मैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सेमिनार्स में बैठ जाता था. कोई भी एक्सपर्ट सीनियर सेमिनार देने वाला, मैं जाके बैठ गया उधर. अब उसी में मैंने बग बाउंटी भी हल्की हल्की सीख ली, उसी में मैंने लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड स्टूडियो भी चलाना सीख लिया, उसी में मैं यूनिटी भी चला रहा था. मैं लाइक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो मैंने खिचड़ी बनाई बेसिकली. उसके बाद मैं उतरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट React.js Node.js, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट पे मैं आके उतरा. तो आपके हिसाब से ये करेक्ट वे है फॉर डेवलपमेंट या कुछ और ऑप्टिमाइज वे हो सकता है? सो डेवलपमेंट का तो यही है कि हमें पहले से तो इसकी नॉलेज होती नहीं है ज़्यादा, और हमें ये एक्सप्लोर करना पड़ता है कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं. जैसे आपने 2-3 चीज़ें ट्राई आउट करी, WebD ट्राई किया, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ट्राई किया, एंड देन एंड्रॉयड भी देखा. सो दैट इज़ द राइट पाथ ओनली. आपने एक्सप्लोर किया, आपको एक चीज़ जो बढ़िया लगी उसमें आपने स्टिक किया, एंड देन यू वेंट फॉरवर्ड विद दैट. जी भैया. सो ये सही अप्रोच है मेरे हिसाब से. मैंने भी ट्राई किया था, मैंने ML पे भी ट्राई किया, मैंने WebD पे भी ट्राई किया. एंड्रॉयड नहीं कर पाया था मैं, मेरे को ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था. सो आई देन वेंट विथ वेब डेवलपमेंट. ओके. अच्छा, मैं ये लाइक समझ में वेब डेवलपर हूँ, कंपनी की रिक्वायरमेंट वो नहीं है, लेकिन लाइक स्टार्टअप में तो मुझे पता है कि कंपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट की बात करती है. बट वही जब हम बड़े कंपनीज में जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल Amazon, तो क्या जरूरत है कि उनको जो चाहिए वो मुझे पहले से आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. इस बड़ी कंपनीज की जब आप बात कर रहे हो, या फैंग की बात कर रहे हो, या फिर मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले से, तो उसमें आपको ट्रेन करते हैं प्रॉपर्ली वो. ओके. और उसमें आपको जावा पे ट्रेन करेंगे, तो आफ्टर 6 मंथ अगर उनको C++ की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो आपको उस पर भी ट्रेन कर देंगे वो. ओके. या दे कैन इन्वेस्ट ऑन यू. उनके पास टाइम भी है, रिसोर्सेज भी हैं, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है. आप पे इन्वेस्ट करेंगे वो आराम से. ओके. ठीक है. स्टार्टअप्स की यहाँ बात आती है, तो सारे स्टार्टअप ऐसे नहीं है जो आपसे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मांगेंगे कि भाई हमें फ्रंट एंड के लिए चाहिए तो आपको फ्रंट एंड आना चाहिए. नो. हमारे जो मेरी हायरिंग की फिट में हुई थी, देन यहाँ पर स्प्रिंकलर है एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, देन एक ट्रायोलॉजी करके है, पहले कोऑर्डिनेशन था उसका नाम. तो ये सारे ये भी नहीं मांगते कोई ऐसा कि आपको WebD या ये आना चाहिए स्पेसिफिकली. प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए बस. लाइक बेसिकली कोडिंग इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही इंपॉर्टेंट, लाइक वही एक चीज हो गई, एंड उसके ऊपर जो किया वो एक एड ऑन हो गया आपके स्किल्स के साथ. एंड अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करना है, लाइक मैं अभी स्टार्टिंग से बात करता हूँ, आपकी लाइक पॉडकास्ट हम ये सोच सकते हैं, एक तो CGPA जरूरी है. जो सीनियर बोल दे CGPA नॉट रिक्वायर्ड, उनसे थोड़ा दूरी बनाओ. उनको रिस्पेक्ट करो, लेकिन मतलब उनको दिल पे मत लो उनके. हाँ. फिर सेकंड थिंग इज कि कोडिंग इंपॉर्टेंट है, कोडिंग करना पड़ेगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हो. थर्ड इज डेवलपमेंट उतना आना चाहिए कि कुछ हम बना सके, राइट? तो लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पॉडकास्ट से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने न्यू सीखी, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग वाज मेरे लाइफ में एक्चुअली यही चल रहा है, प्लेसमेंट फेज में ना कुछ जगह नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो मैं वो क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा था कि मैं कैसे निकलूं. देयर आर सम सिनेरियोस, तो लाइक दैट वाज द माय फेवरेट पार्ट. एंड ऑनेस्टली भैया लाइक ये कन्वर्सेशन एक कहते हैं ना यादगार कन्वर्सेशन है मेरे लिए, क्योंकि अब 1 साल बाकी है.
बिल्कुल यार. So जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दी बेस्ट फॉर प्लेसमेंट्स. एंड अगर आज नहीं लग रही है तो डेफिनेटली कल लग जाएगी. इट्स नॉट अ बिग इशू. बस आपको कंटिन्यू करना है ये प्रोसेस, रुकना नहीं है कहीं भी आकर के. Thanks a lot, Bhaiya, for Thank you so being with us. Thank you, Vijay.